Hello everyone, good morning. And CET ka cap round 2 ka result is out. So everybody is excited. We are very excited for the result. We have till now about 30 people at JBN Sydenham, which beats even our past year ka record, which was 21, and we were very proud of. So this year, I don't even know what to say because I'm extremely excited for this year's result. And abhi tak cap round 3 bacha hua hai. So I'll release a final video when the final results are out. Chalo. Till then, guys, I want to speak about the people who didn't get through where they wanted to, who want to try for betterment. And I'm saying that you are the bravest people. Life का पूरा एक साल dedicate करना just so that you can get a future growth is the best kind of investment attitude that you can have. Build that attitude, keep that attitude, and make sure that you are going to do the best in life if you're able to go through with whatever you decide. So today I'm making an entire video for all the people who want to know how to build their profile. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है दिमाग में बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी, सर मेरा एक साल का गैप है, सर मेरे प्रोफाइल में क्या फर्क पड़ेगा, सर प्लेसमेंट्स में क्या प्रॉब्लम आएगा, मेरे एक साल का गैप है, व्हाट डू आई डू इन द गैप, हाउ डू आई जस्टिफाई द गैप. दिस वीडियो इज entirely for it. Okay, so guys, I'm going to teach you the two kind of skills which are hard skills and soft skills. पहले इनका फर्क सिखाता हूँ that how do you use these. हार्ड स्किल्स आर लिटरली जो तुम्हारे काम के टाइम काम आती है. फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें अगर प्रॉपरली एक्सेल यूज करना आता है, तुम्हें अगर ऑपरेशंस के जो कोर्सेज है लाइक सिक्स सिग्मा, तुम्हें अगर मार्केटिंग में तुम्हें सारे जो मार्केटिंग डायग्राम्स, मार्केटिंग फिगर्स, मार्केटिंग मॉडल्स, ये सारे तुम्हें प्रॉपरली आता है. फॉर फाइनेंस, इफ यू नो हाउ टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग, इफ यू नो हाउ टू इक्विटी रिसर्च, ये सारे होते हैं हार्ड स्किल्स. दीज आर बेसिकली द पॉइंटर्स जो HR पीपल टिक मार्क मारते हैं अपनी लिस्ट में कि मुझे ये चीजें आदमी को आनी चाहिए फॉर मी टू हायर देम. एंड द सेकेंड थिंग आर सॉफ्ट स्किल्स. देखो हार्ड स्किल्स है ना, मैं तुम्हें कोर्स का लिंक दे दूंगा, तुम वो कोर्स कर लो, तुम्हारा हार्ड स्किल कवर हो गया. Soft skills are not like that. Soft skills are basically how do you speak, how do you present yourself, how do you make sure that you build a connection. Because well, let's be honest, कोई भी HR तुम्हें हायर करेगा वो एक रोबोट को हायर नहीं कर रहा है. अगर उसे सिर्फ स्किल्स चाहिए, दे विल हायर अ रोबोट. But if they want genuine people skills, they want to be with a person who can work in the company, and they want to make sure that the manager that you will stay with or work with, he has a good company that he will enjoy working with. That is when they hire a person. And that is why soft skills are important. Soft skills मतलब तुम कैसे interact करते हो, how do you tell stories, how do you express, how do you impress. More about how do you impress. That is what soft skills are. So ये दोनों चीजें कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ. चलो, कौन से कोर्सेस क्या क्या करने हैं, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन. नाउ लेट्स assume my screen is visible. चलो, सो गाइज हार्ड स्किल्स. नाउ हार्ड स्किल्स होते हैं थोड़े टफ, तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं, इसके लिए तुम्हें कोर्सेज करने पड़ेंगे. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू अ फ्यू कोर्सेज, एक्चुअली रिसर्च एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग अ गुड कोर्स. देखो ये सारी चीजों के लिए ना तुम्हें कोर्स बहुत सारे मिलेंगे इंटरनेट पे, कोर्सेरा, यूडेमी, ये वो, फलाना ढिमका, नौकरी लर्निंग, हर जगह पे तुम्हें मिल जाएंगी चीजें. बट प्लीज मेक श्योर दैट यू आर नॉट गोइंग फॉर द चीपेस्ट कोर्स. आई एम टेलिंग यू from personal experience and from the experience of many others that I know, सबसे सस्ते वाले कोर्स करोगे ना उसकी वैल्यू भी एकदम चिंदी होती है. स्पेशली द फ्री कोर्सेज, कोई उसको भाव नहीं देता, कोई उसको सीरियसली नहीं लेता. Please make sure that you are doing good courses. I will try and put up a few links in the video description. You can check them. If not, you can obviously keep researching. Okay? ये देखो, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट में सारे एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या है. ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन इज बेसिकली so I'll explain what blockchain is in the most simple manner. Blockchain is data जो यहां से वहां ट्रांसफर होता है. Now let me just share this. Let me just explain it in this manner. So yeah, the way that I have been explained by a blockchain expert at NPCI, I'll explain it in this manner. Blockchain मतलब तुम्हें अलग अलग डेटा सेंटर से तुम डेटा सेंड करते जाते हो. बट समझो अगर ये डब्बा एक डेटा है जो यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है, और लेट्स से दिस इज अ बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी. ये बिटकॉइन इज इन फॉर्म ऑफ अ ब्लॉकचेन. मैं बिटकॉइन पर्सन ए से पर्सन बी को देता हूं, पर्सन बी से पर्सन सी को देता हूं. ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, अब ये बिटकॉइन जब यहां से यहां जाता है ना, तब उसमें होती है दो डिटेल्स. एक जो प्रेजेंट होल्डर है उसकी डिटेल्स, और जो पास्ट होल्डर है उसकी डिटेल्स. मतलब इमीडिएट पहले वाला, मतलब एंड जब ब्लॉकचेन स्टार्ट होता है, जब पहला वाला ब्लॉकचेन बनता है, द स्टार्टिंग ऑफ द ब्लॉकचेन, इट हैज नो प्रीवियस डेटा. दैट मींस दैट इज वेयर इट ओरिजिन फ्रॉम.
बाद में जब B2C जाएगा, इसमें कौन सी डिटेल्स होंगी? इसमें होगी बी की कि ये कहां से आया और ये कहां पे बैठा है, उसकी डिटेल्स होगी। तो बी से सी, दैट इज ब्लॉकचेन। नाउ ब्लॉकचेन इज इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल सिक्योरिटी पर्पसेस। सारी बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल पेमेंट इंटरफेसेस आर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर तुम्हें सीरियसली आगे जाके फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी करना है, या फिर कोई भी जगह पे जाना है जहां पे तुम ब्लॉकचेन यूज करोगे, then literally blockchain management is a hard skill that you really need to build. So please make sure that तुम थोड़ा इसके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हो. I don't want you to be experts. Coursera has a very good course on blockchain management. Then data analytics. Data analytics मतलब मेरे सामने इतना सारा डेटा पड़ा है, इतना सारा डेटा. Now the data will be like blocks. मतलब डेटा समझो हम लूडो खेलने बैठे हैं, या लूडो छोड़ो, हम जेंगा खेलने बैठे हैं, एंड इतने सारे ब्लॉक्स है अलग अलग कलर्स के, इतने सारे पजल्स है, पजल जैसा है जिसमें अलग अलग कलर्स है. डेटा एनालिटिक्स इज हाउ डू एनालाइज रेड वाले कितने हैं, ब्लू वाले कितने हैं, ग्रीन वाले कितने हैं, ऑरेंज वाले कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल द वे दैट आई वर्क, जब व्हेन आई वर्क एट एनपीसीआई, जब मैं भीम के लिए काम करता हूँ, इतने सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, तो मुझे पता चलता है ओ माई गॉड, दिन के 3.5 लाख 4 लाख ट्रांजेक्शन आए. How do I differentiate them? Analytics, what I analyze in my company or at my job is basically that इतने सारे ये वाली बैंक से आए, ये वाली बैंक से इन्होंने जीपे यूज किया, जीपे में इन्होंने ये वाले बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया. ओके, लाइक स्पॉन्सर बैंक एंड बैंक अकाउंट फॉर द पर्सन इज डिफरेंट. इस हिसाब से जब मैं करता हूँ तब पता चलता है दैट ये वाली बैंक से जीपे पे ज्यादा लोग जा रहे हैं, ये वाली बैंक से भीम पे ज्यादा लोग हैं, ये वाली बैंक से यूपीआई पे ज्यादा, ओवरऑल यूपीआई पे इतने लोग हैं. दिस गिव्स मी एन आइडिया दैट व्हाट बैंक शुड आई बी वर्किंग विद, कहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कहां पे क्या हो रहा है. इट गिव्स मी अ क्लियर आइडिया दैट प्रॉब्लम कहां पे है. डेटा एनालिटिक्स इस प्रॉब्लम को पहचानना. ओके अगर प्रॉब्लम को पहचानोगे तो ही सॉल्व कर पाओगे. दैट इज व्हाई डेटा एनालिटिक्स इज इंपॉर्टेंट. नेटवर्क इफेक्ट्स ऑन प्लेटफॉर्म्स. नेटवर्क इज बेसिकली लाइक, समझो हम जैसे बहुत बड़ी भीड़ में है, इफ वी आर इन अ वेरी ह्यूज क्राउड, तो वो क्राउड में बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग चीजें करेंगे. अगर बहुत सारे लोग एक मशीन पे काम कर रहे हैं, कभी ना कोई एक जन गलती कर देगा और वो मशीन को ब्रेक डाउन होना चालू हो जाएगा. नेटवर्क इज द सेम. नेटवर्क मतलब बहुत सारे अलग अलग इंटरनेट्स, इंट्रानेट्स आर वर्किंग टुगेदर. यू हैव टू फिगर आउट दैट अगर कुछ भी आड़ा टेढ़ा जा रहा है, या फिर कोई भी चीज ग्रो हो रही है, तो किसकी वजह से ग्रो हो रही है. जिसकी वजह से ग्रो हो रही है उसका हम मात्रा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से स्लो ग्रो हो रही है उसकी हम मात्रा कम कर देंगे. फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इंट्रानेट इज नॉट वर्किंग वेल विद द एंटायर नेटवर्क, द ओवरऑल इंटरनेट, द ओवरऑल वर्ल्ड वाइड वेब, उसमें कौन सी चीज नहीं काम कर रही है. दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ नेटवर्क इफेक्ट्स ऑन प्लेटफॉर्म. एडवांस एक्सेल, आई कांट टेल यू इनफ. एक्सेल जिंदगी भर तुम्हारी जान खाने वाला है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग एक्सेल. एक्सेल मतलब देखो सबको लगता है अरे मुझे वी लुकअप करना है और क्या सीखना है. नहीं, वी लुकअप इज नॉट इवन द ब्लडी स्टार्ट ऑफ हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग एक्सेल्स. बहुत लोगों को तो पिवट टेबल में भी बहुत ज्यादा मार्क्स चढ़ जाता है. अरे यार मुझे तो पिवट टेबल बनाना आता है, तेरे को क्या आता है. तुम लोग को घंटा कुछ नहीं आता अगर तुम्हें पिवट टेबल और वी लुकअप आता है तो. आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट मुझे पिवट टेबल और वी लुकअप आता था, मैं लोगों से कितना पीछे था. इफ यू आर नॉट लर्निंग हाउ टू मेक मैक्रोज, मैक्रोज सीखो एक्सेल में. स्टार्ट लर्निंग हाउ टू मेक मैक्रोज. मैक्रोज आर वेरी एडवांस फॉर्मुलाज व्हिच गिव यू रिजल्ट्स ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा इन अ वेरी शॉर्ट एंड सटल मैनर. दैट इज व्हाट मैक्रोज आर. स्टार्ट लर्निंग हाउ टू यूज मैक्रोज ऑन एक्सेल. एंड जैसे ही तुम एक्सेल पढ़ोगे उसके बाद इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, एसक्यूएल एंड रिएक्ट नेटिव. पाइथन इज जब तुम कोई भी चीज को विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हो. जैसे पहले कोडिंग लैंग्वेजेस जावा, एचटीएमएल ये सब होते थे, अब पाइथन इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, इट्स अ रिप्लेसमेंट. पाइथन का फायदा है तुम एक कमांड दोगे वो 10 काम कर देगा, वो ऑटोमेशन में काम आता है. एसक्यूएल इज अ लॉट ऑफ डेटा. जैसे देखो अभी मैं काम कर रहा हूँ एनपीसीआई के साथ, भीम के साथ. मैं अगर एक्सेल में काम करने बैठा ना तो मेरा काम नहीं होने वाला, बिकॉज एक्सेल की लिमिट है 1,10,000. 1,10,000 सेल्स बन सकते हैं, बट मुझे दिन के ही आते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख जितने ट्रांजेक्शन. डिपेंडिंग ऑन व्हाट डे इट इज. कोई अगर सेल चल रहा है तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है. सॉरी, एक्सेल का लिमिट है 10 लाख जितना. यू नाउ अंडरस्टैंड. अब इसमें मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर मैं सिर्फ एक्सेल करने बैठूंगा, बिकॉज एक्सेल का लिमिट ही नहीं है. सॉरी, एक्सेल का लिमिट है और नंबर्स का लिमिट नहीं है. SQL is how do you manage a lot of data in a very short amount of time. SQL का मतलब ही वो है that तुम डेटा मैनेज करोगे, बहुत सारे डेटा को मैनेज करोगे, वो तुम SQL से कर पाओगे. एंड रिएक्ट नेटिव इज अ वेरी न्यू एंड अपकमिंग स्किल जो तुम सीखोगे, जहां पे तुम सीखोगे कैसे एप्स डेवलप होते हैं.
आजकल दुनिया में हर एक चीज के लिए ऐप होता है। कल सुबह शायद क्रैकर का भी ऐप आ जाए, भीम ऐप है, गूगल पे है, फ्लिपकार्ट है, एंड हॉटस्टार है। रिएक्ट नेटिव तुम्हें सिखाएगा ये सबको कैसे प्रोग्राम करते हैं। ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। रिएक्ट नेटिव इज अ वेरी बेसिक स्किल, जिसके लिए तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, एसक्यूएल और पाइथन का, या फिर थोड़ा बहुत जावा एचटीएमएल का। उसके बेसिस पे तुम बहुत सारी चीजें कर पाओगे। रिएक्ट नेटिव इज गुड बिकॉज वो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में काम करता है। तुम्हें ये सीखने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें इसके बेसिक्स आने चाहिए कि अगर तुम किसी को काम करवा रहे हो तो वो कैसे तुम्हारा काम करके देगा। बिकॉज आई वर्क विद अ टेक टीम ऑल द टाइम ना, मुझे ये आना चाहिए सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट आई एम फिगरिंग आउट इफ दे आर डूइंग द राइट थिंग और नॉट, और मैं उनको सोल्यूशन बता सकता हूँ। उनका काम है मैं जो दू सोल्यूशन उसको एग्जीक्यूट करना। मैं बोलूंगा ये स्क्रीन है, यहाँ पे 10 बटन, यहाँ पे 5 बटन, और यहाँ पे एक स्क्रोल होना चाहिए। उसका काम है वो बना देगा। बट मेरे दिमाग में मुझे रिएक्ट नेटिव थोड़ा आना चाहिए कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। अब मैं उसको नहीं बोल सकता कि पीछे से इमेज लेके आ, मैं उसको नहीं बोल सकता दैट अरे ये ऐप में अंदर दूसरा ऐप खोल, वो सब नहीं पॉसिबल होता है। क्या पॉसिबल होता है, क्या पॉसिबल नहीं होता, वो जानने के लिए रिएक्ट नेटिव जानना जरूरी है। दीज आर अ फ्यू हार्ड स्किल्स जो आजकल इंडस्ट्री में बहुत 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 ज्यादा वैल्यूएबल है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन टू द सॉफ्ट स्किल्स। एंड ऑनेस्टली आई बिलीव, या ये हार्ड स्किल्स तुम ये सारी वेबसाइट्स पे सीख सकते हो। आई विल ट्राई टू पुट इन अ फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अपलोड होने के शायद 1-2 दिन में वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे। आई विल टेल माय टीम एंड वो लिंक्स वहां पे डाल देंगे हम। ओके, नाउ सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स है ना बहुत लोग कर देते हैं, बट आई टेल यू व्हाट गाइस, वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी कौन? Amazon, Bill Gates. Amazon, Jeff Bezos. And then come many other people like Bill Gates. There is Elon Musk. I consider Elon Musk as a temporary rich guy. मैं इसलिए उसको ज्यादा नहीं गिनता. But if you look at Jeff Bezos, is he a programmer? नहीं. But वो किस पे पैसा कमा रहा है? He's earning on an app. So please understand that if he's earning out of an app, क्या वो app उसने बनाया? नहीं. उसको उसने सिर्फ वो लोगों को मैनेज किया जिसने वो ऐप बनाया। Bill Gates. Bill Gates is a programmer. Is he an absolute prodigy? No. He has little bit of coding skills यहाँ वहां उसको है, little bit नहीं, अच्छा है, but is he the best? नहीं, but the best of the best people work for him. How? Because he knows how to manage them. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg is not an absolute amazing coder. नहीं, he has amazing coders working for him. सॉफ्ट स्किल्स का मतलब मुझे लोगों को मैनेज करना है, मुझे काम को मैनेज करना है। काम करना नहीं है, काम मैनेज करना है, काम निकलवा के लेना है। देखो, द वे दैट द एजुकेशन सिस्टम इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास स्किल्स है, मतलब हार्ड स्किल्स, जो ट्रेनिंग लेके कोई भी चीज कर सकते हैं तुम्हारा काम। बट उनसे काम निकलवा के लेना ये एक बहुत रेयर स्किल है जो सब में नहीं होता। एंड इसीलिए इतने सारे जॉब्स है बट इतने सारे एम्प्लॉयर्स नहीं है। एक ही एम्प्लॉयर 100, 150, 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। कैसे? क्योंकि उसके पास सॉफ्ट स्किल्स है। सो इफ यू वांट टू जेन्युइनली प्रोग्रेस इन लाइफ, बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स देखो लगते हैं बहुत इजी, बट होते इतने इजी नहीं है। इनिशिएट कॉन्वर्जेशंस, रैंडमली किसी के साथ भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करो, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू आर वेरी वेरी गुड विद द कॉन्वर्सेशन। इसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए? अगर सामने वाला रॉकेट साइंटिस्ट है तो तुम्हें उसके साथ थोड़ा रॉकेट साइंस के बारे में बात करना पड़ेगा। अगर सामने वाला कोडर है तो तुम्हें थोड़ा बहुत रिएक्ट नेटिव, थोड़ा बहुत जावा, थोड़ा बहुत एचटीएमएल, थोड़ा बहुत पाइथन आना चाहिए। तुम्हें एक्सपर्ट नहीं बनना है उसमें, बट अगर तुम सब चीजों के थोड़े 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 नॉलेज लेके बैठोगे तो तुम किसी के साथ भी एटलीस्ट वर्किंग कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। और अगर तुम उससे बोलोगे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई टेल पीपल दैट मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, बट जब मैं एप्स के बारे में और प्रोग्रामिंग के बारे में बात करने बैठता हूँ, उनको लगता है अरे यार मुझे तो कॉमर्स का कुछ नहीं आता, क्योंकि मैंने तो सिर्फ एप्स का पढ़ा। बट इसने कॉमर्स पढ़ा पर इसको एप्स का भी आता है, अरे यार इसका तो नॉलेज बहुत अच्छा है। मैं बेसिक नॉलेज ही दिखाता हूँ, बट मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, मैं उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर सकता हूँ। दैट इज हाउ आई इनिशिएट कॉन्वर्जेशन। टू गिव एन एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्रेट, मैं अभी कंपनी में 3-4 महीने पुराना हूँ, बट मेरा ऑलरेडी कंपनी की टेक टीम के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है, जब कुछ बिगड़ता है ना, तब अब मेरी टीम जो 1, 1.5, 2 साल से वहीं पे है, वो लोग मुझे बोलते हैं जिगर जा तू जाके बात कर, तू उनको मना लेता है, वो लोग तेरी बात सुनते हैं। This is how communication works. This is the kind of communication skill that I have built over the years, that मैं किसी के साथ भी अच्छी दोस्ती बना सकता हूँ, किसी के साथ अच्छे से प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना सकता हूँ। That is why you need to know how to initiate conversations. The second one, increase your English language usage. Please make sure that you understand English language is very very important. I am not saying that तुम जहां जाओगे सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे, बट जहां पे तुम्हें इंप्रेशन बनानी है, जहां पे तुम प्रोफेशनली बात करोगे, इट इज बेटर to be at a point that
अगर देखो, मैं बहुत जगह पे हिंदी में बात करता हूँ, मेरी ऑफिस में भी, बट दे नो वेरी वेल दैट मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। दो चीजें होती है, या तो इसको इंग्लिश आता नहीं है इसीलिए हिंदी में बात करता है, और दूसरा, इसको इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आती है पर ये हिंदी में बात करता है क्या कि हमें समझा सके। सो अंडरस्टैंड, बी द सेकेंड गाय जिसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, जिसने अपने स्किल्स प्रेजेंट किए हैं इंग्लिश में, और बाद में वो हिंदी में सिर्फ सामने वाले को समझ में आए, इजी हो जाए, इसीलिए हिंदी में बात करता है। Increase your English language usage. It is very very important to make sure that you are good with the English language and you read very very well. You read very very good books and read in a good manner so that you can speak well. Interact with your classmates, professors and seniors. बहुत लोग क्या करते हैं पता है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, कुछ फायदा नहीं है। You need to make sure that you are learning from your classmates. तुम अगर तुम MBA कर भी रहे हो and you are watching this video, please make sure that you are learning from your classmates what they have learned, their skills, their weaknesses, their strengths, सारे तुम्हें पता होने चाहिए, so that in a very crass manner you can use those strengths and you can use those weaknesses to benefit yourself, and they will do the same. But if you are able to do this well, तुम पूरे क्लास के साथ एक रिलेशनशिप बना पाओगे, और कल जाके जब किसी का जॉब जाएगा, किसी को हेल्प चाहिए होगी, दे विल कम एंड आस्क यू एंड यू विल बी एबल टू हेल्प देम। उसमें तुम्हारा इक्विटी बढ़ेगा, उसमें तुम्हारा रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ये हेल्प करेगा तुम्हें अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनाने के लिए, तुम्हें फ्यूचर बिजनेस लाके देगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप विद मेनी ऑफ माई क्लासमेट्स। A few of them had a few issues with their job, जहां पे उन्होंने जॉब छोड़ा। They immediately came to me and told me, जिगर सुन, अगर तेरे कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू सेंड माय सीवी अराउंड। मैंने उनका सीवी भेजा, उनको एक दो इंटरव्यू कॉल्स भी आ चुके हैं ऑलरेडी, जबकि उन्होंने मुझे सीवी एक हफ्ते पहले जितना भेजा था। सो नाउ अंडरस्टैंड, इफ यू आर एबल टू हेल्प अ पर्सन, जबकि वो अगर लिंक्डइन पे अप्लाई करता था तो इतनी जल्दी इंटरव्यू कॉल नहीं आता था। मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने मेरे कॉन्टैक्ट को उसका नंबर, उसका सीवी भेज दिया। क्यों? क्योंकि मेरे अच्छा नेटवर्क है। वो नेटवर्क बिल्ड करने का तुम्हें फायदा इतने आगे तक मिलेगा दैट क्या बताओ। एंड दैट ओनली हैपेंस व्हेन यू इंटरैक्ट विद योर क्लासमेट्स। तुम्हारे प्रोफेसर्स को उनकी लाइफ के बारे में पूछो, आस्क देम व्हाट हैव दे डन इन लाइफ। वो लोग सिर्फ टीचर्स नहीं है, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे हैव डन अ लॉट, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम किया है, और उनके तो तुम सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे नेटवर्क्स हैं। एंड फाइनली तुम्हारे सीनियर्स, जो लोग ऑलरेडी तुमसे तुम्हारे जैसा ही सीखे हुए, बट उनके रिजल्ट्स तुमसे अलग आ रहे हैं, तुमसे अच्छे आ रहे हैं, वो सीनियर से बात करो और उनसे पूछो दैट उन्होंने सेम नॉलेज के साथ कैसे अपने आप को इतना अच्छा बिल्ड किया। ऐसे तुम इंटरेक्शन करोगे। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स। यू मस्ट नो व्हाट करंट अफेयर्स आर। टू गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू ऑनेस्टली नो व्हाट एन ई रूपी इज? नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज्ड बिकॉज देयर आर टू टाइप्स, लाइक, रुको, हाँ, there are two things which the government is doing right now. One is e-rupee, e-rupee. दिस इज अ वाउचर मैनेजमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट सब्सिडीज। ये जल्दी ही तुम्हें सारे यूपीआई एप्स पे देखने मिलेगा। आई नो बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट्स अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन, यू कैन सर्च फॉर इट, तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एंड द अदर वन इज ई रूपी, दैट इज RUPEE। व्हाट इज दिस? Central Depository Digital Currency, that is CDDC. Now, please understand, e-rupee is just like an electronic रूपी। तुम पैसा इलेक्ट्रॉनिकली कैरी कर सकते हो अपने फोन में, अपने अकाउंट में, हर जगह पे, और तुम इलेक्ट्रॉनिकली पे कर सकते हो, एक्चुअल पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। दैट इज ई रूपी। थिंक ऑफ इट लाइक एन इंडियन वर्जन ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी। ये दोनों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है। ये दोनों चीजें अलग है, ये दोनों चीजें गवर्नमेंट ने की है, और ये सारे करंट अफेयर्स का पार्ट है, क्योंकि ई रूपी का न्यूज तो 2 दिन पहले आया है, सेकंड वाले ई रूपी का न्यूज 2 दिन पहले आया है। बट ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए दैट व्हाट इज एन ई रूपी, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड मी, बिकॉज ई रूपी इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ यू, एंड ऑल्सो इवन दिस ई रूपी इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल ऑफ यू। तुम सबको ये काम आने वाला है, आज नहीं तो कल, और बहुत बड़ी मात्रा में काम आने वाला है व्हेन यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स। So please make sure that you are reading up about this and make sure that you are up to date with all your current affairs. And finally, participate in competitions or events on D2C. जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए। आई एम टेलिंग यू, हारने के लिए पार्टिसिपेट करो कॉम्पिटिशन्स में, बिकॉज तुम हारोगे बट कोई जीतेगा, और तुम देख पाओगे वो क्यों जीता, वो कैसे जीता, और उसने क्या किया जो वो जीता। अगर तुम जीते, अमेजिंग, बट कभी भी हारने से डरो मत। I read this very nice thing which I really want to share with all of you. One of the vendors, one of the people that
I work with, उसने ये चीज मुझे समझाई दैट जिगर, एंड आई आस्क्ड हिम दैट आपका स्टार्टअप तो 5 साल पुराना है, बट आप ऑलरेडी एनपीसीआई जैसे कंपनी के साथ काम कर रहे हो, करोड़ों के टेंडर्स उठा रहे हो, और एनपीसीआई है कि आप एयरपोर्ट्स ये वो फलाना ढिमका इतनी सारी चीजों के साथ काम करते हो. He showed me one. He said, Jigar, stick to just one ideology. And I was talking directly to the owner because, well, lead who? So, so yeah, he told me, Jigar, stick to one principle. He told me this: fail fast. It is not necessary that you do things fast or win fast, but it is very important that you fail fast. Only if you fail fast, you will be able to understand how to fail well. Okay. And if you fail well, you will learn well. So, yes, guys, this is it for the video. I really want you guys to understand that soft skills, hard skills build करना बहुत ज़्यादा important है. इनसे तुम्हें placement में बहुत ज़्यादा फायदा होगा. And please make sure that if you're building these skills well, you will be really able to do very well in life and very well in your placements that are going to be upcoming in the next year जब तुम्हें admission मिलेगा तब. Okay? चलो. Bye everyone. I hope this video helped. If you like the video, just comment in the video whatever your thoughts are. Bye.